against COVID-19. Vaccination along with social distancing, sanitization. नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम इन फोकस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं और अभी का ये जो वक्त है, देश में जगह जगह अलग अलग हिस्सों में अब बारिश शुरू हो गई है। मानसून कई हिस्सों में पहुंच चुका है और कई हिस्सों से अब बाढ़ की खबरें भी आने लगी हैं। तो बाढ़ से किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और इससे जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उनके साथ उन्होंने समीक्षा की और कई सारे सुझाव और कई सारे निर्देश इस दौरान दिए गए। क्या कुछ ये सुझाव हैं, क्या कुछ ये निर्देश हैं, ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते रहेंगे। और अगले 1 घंटे के दौरान बाढ़ की चुनौती, इससे कैसे निपटा जाए, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ होंगी मेरी सहयोगी प्रीति। Thank you, Joshi, and yes, we welcome you all to our program In Focus, wherein today we'll be discussing how to tackle the flood situation, the flood problem in the country. It is always said that excess of everything is bad. Rains do prove to be a boon for the country, but at the same time, excess of rains leads to flooding, and that is one problem that has to be tackled at the national level. And this was what was seen in the meeting, which was chaired by Union Home Minister Amit Shah. We'll get to more on that. And to talk about the challenges and what lies ahead when we talk of the tackling the flood situation in the country, we're joined in by guests. We're joined in by Mr. Krishna Swaroop Vatsa, member MDMA. We're joined in by Mohsen Shahedi, DIG Operation NDRF. We're also joined in by Gyanendra Tripathi, CEO, State Disaster Management Authority, Assam, and Eklavya Prasad, Managing Trustee, Make Pine Abhiyan. We welcome all of you this afternoon on the show In Focus. To begin with, Mr. Vatsa, I would want you to tell us, where are we standing when we talk of the tackling and measures and efforts taken to tackle the flood situation? Because every year we see many parts of the country are they reel under the floods for a good number of days, and at the end there is a loss to property and life as well, destruction as well. So to begin with, what are the efforts, what are the measures, where are we standing when we talk of tackling the challenge of flood problems in the country? Any season we start reviewing the flood preparedness with all the states. We convene the meeting of the State Disaster Management Authorities, the early warning agencies, and the authorities which are related to the release of water from dams. And we conduct a detailed review of the preparedness measures. In all these meetings, what we emphasize very much is the local preparedness and the efforts to reduce the loss of lives. On an average, we have 2,000 deaths every year due to floods, but because of the efforts that we have taken in recent years, this number has been going down. So we are making all our efforts to reduce the number of deaths, and what it requires is that we improve our early warning system and we coordinate the release of water from dams so that people get enough time to evacuate. And what is also very important is that we hold meetings with the NDRF and National Disaster Response Force and State Disaster Response Force, who work with the local population to evacuate the people as fast as possible and take them to safer places. So a lot of coordination has been attempted this year, like previous years,
And we hope that we would be able to deal with the floods in a competent manner. Thank you. ठीक है, हमारे साथ मोहसिन शाहिदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीआईजी ऑपरेशन है एनडीआरएफ के। मोहसिन साहब, आपका बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है इस सबसे निपटने में, और पिछले कुछ सालों में लगातार जहां भी बाढ़ आती है, जहां भी इस तरह की स्थिति बनती है, आप वहां पर पहुंचते हैं और राहत और बचाव कार्य वहां पर शुरू होते हैं। क्या कुछ आपको लगता है, हालांकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि काफ़ी जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज के बीच में, वो काफ़ी अच्छा हुआ है, अभी भी आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ सही करने की ज़रूरत है, क्या कुछ कमी आपके पिछले अनुभवों में आपको लगती है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो फ्लड डिजास्टर सिचुएशन है उसमें ये समझने की जरूरत है कि भारत का तकरीबन 12% जो लैंड मास है वो फ्लड प्रोन है, और इसमें तकरीबन 40 मिलियन हेक्टेयर जो जोग्राफिकल एरिया जो कंट्री का है वो जो है इसमें आता है, और हर साल तकरीबन 70 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो अफेक्टेड होते हैं। जैसा बताया मेंबर एनडीएमए ने, 2000 से ज्यादा लाइफ लॉस होती हैं और तकरीबन 5000 करोड़ का लॉस होता है, एनुअल लॉस। तो इसके मद्देनजर जो FWR जिसको बोलते हैं फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन, वो एनडीआरएफ का मेजर ऑपरेशन है जो तकरीबन 6 महीने जून से लेकर के नवंबर तक चलता है। और इसके इस 6 महीने में बहुत चैलेंजेस रहते हैं हमारे लिए। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट, कोऑर्डिनेशन स्टेट अथॉरिटीज के साथ और तालमेल के साथ एक रेस्पॉन्स अच्छी तरह देना ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। इसमें हम कई स्टेजेस में अपना डिप्लॉयमेंट करते हैं, तैयारी करते हैं। उसके बाद जब डिप्लॉयमेंट होता है तो उसमें भी कई चैलेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें खास तौर पर जो अभी पिछले 2 साल से कोविड पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन आई है कंट्री में, उसमें एनहांस जो है हमारा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है हमारे रेस्क्यूअर्स को। ये चैलेंज जो है हमारे लिए भी है, और स्टेट्स में जो हमारे SDRF जो हमारे काउंटर पार्ट हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको निपटने के लिए हमने स्पेशल हेड गियर डिवाइस किया है, जिससे कि हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनका जो खास जो नाक, कान और आंख से जो खतरा पैदा हो सकता है उसको ढकने के लिए प्रॉपरली, ताकि जब रेस्क्यूअर्स जो है अपने बोट्स में सिविलियंस को बैठाते हैं और नजदीक आते हैं तो उनको कम से कम नुकसान हो। इसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं और तैयारी की है हमने। अपने रेस्क्यूअर्स को हमने वैक्सीनेशन कराया है। हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं अभी 100% वैक्सीनेटेड हैं डबल डोज के साथ, तो पूरी तैयारी है। ये एक अच्छी बात है, और इससे चैलेंज भी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। इसके अलावा जो कम्युनिटी अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कम्युनिटी अगर अवेयर है और वो जानती है कि हाँ ये खतरा है तो हमारा काम आसान हो जाता है। जैसा हम साइक्लोन में भी देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो अपने जगह से निकलना नहीं चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, या लाइव स्टॉक होता है उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, या कई बार जो कुछ जो शेल्टर्स है जो बनाए जाते हैं टेम्पोररी शेल्टर्स, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसके वजह से भी वो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब चैलेंजेस है हमारे लिए, और स्टेट से कोऑर्डिनेशन करते हुए इसमें लगातार जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छी बात यह है कि जो देखने में आ रही है कि फ्लड सिचुएशन जो है वो बहुत ही हायर लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर खुद जो है मीटिंग्स लेकर के डायरेक्शंस दे रहे हैं, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी एजेंसी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना काम बाखूबी निभाएं और ग्राउंड में मौजूद रहें। All right, at this point I'll bring in Mr. Prasad. Mr. Prasad, what is your evaluation or your reading of the phenomena of flooding, in the sense that we know that floods are a natural phenomena that is important for the environment to some extent, because it is needed to carry out some natural processes like bringing alluvial soil to fields, groundwater recharge,
or replenishment of the water bodies. But excess of flooding, excess of rain, would cause flooding. What has been the prime reasons? What have been the prime reasons in the past that we see that the flood situation in the country has risen to this level? Thank you very much for mentioning that, or rather painting that all floods are not bad, because floods do bring in a lease of hope and life to the flood plains across the. However, I would say that it is not the rains actually or the monsoon that tend to have an impact or manifests in floods. It's also about how we deal with our rivers. The fact that I have been working for the last 16 years in Bihar, so most of my views will be from Bihar and a bit from Assam as well. Now, the way we have been dealing with our rivers is in terms of embanking them, which means that we are not allowing the rivers to spread itself the way it used to earlier. The natural course has been restricted, because of which the siltation tends to add on to the riverbed, and the riverbed rises, which then the river tends to create an impact on the embankments, and then thereafter you have breaches. So I would rather say that the way our entire focus has been on structural interventions with regard to river management or flood management also needs to be looked into, also needs to be reviewed, also needs to be understood in order to ensure that these kind of human-induced catastrophes are do not get repeated in the future. That's one. The second thing which I would like to highlight here with regard to floods is that floods is not an uniform identity. Though it manifests as one, it comes across as an area which gets inundated, and therefore it is flooding, and that is what we take as floods per se. But then the reasons of flooding, the whole character of flooding, the hazards linked with flooding actually leads us to a whole typologies of flood which needs to be understood. In Bihar, through Make Mine Abhiyan, we have been working on this whole concept of typologies of floods. Until date, we have identified almost 8 different typologies of floods. Now, all these 8 different typologies of floods gives us an idea in terms of who are exposed and what is the character of the hazard, in terms of response of the people, in terms of the time that is given to people to respond, to rescue themselves, to move on to safer locations. So unless and until we get into the nuances of the typologies, I would say that our entire approach would largely be with regard to rescue at a given point of time, but we will not be looking at flood management, the whole intervention of flood response in totality. And mind you, floods, when we are talking about floods, it has 3 distinct phases. One is the pre-floods, second is during, and the third is post. So when you are looking at these 3 verticals, we are talking about preparedness, we are talking about response, and we are talking about rehabilitation. So therefore, it becomes all the more important with the fact that, like for instance, what Sajid did mention about the processes. I think so there is a need for this kind of a process to be incorporated where we map the different typologies of floods in each of the district, and that can be compiled at the regional level and then thereafter the state level. That will give us an idea in terms of where are the regions which gets flash floods, because in the entire discourse of floods, I'm sorry to say that a lot of it is focused on rivers that are embanked. We are not talking about small, short, even at times invisible transboundary rivers, which tend to also impact a large part of the region. Therefore, when we are talking about floods, we have to also understand that the floodplains do require floods. Along with it,
the way we are managing our own rivers also tends to add on to the whole strategy of flood management, which has had quite a disastrous impact to begin with. So I'll end here and I'll mention things later as well. ठीक है, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी असम के। ज्ञानेंद्र जी, अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में हर साल ये देखा जाता है कि बाढ़ से वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है, और पिछले कुछ सालों का जो अनुभव है उससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कितना कुछ अभी तक किया गया है और क्या कुछ आगे को करने की जरूरत है? असम की अगर हम बात करें तो फ्लड असम की लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लगभग हर जिले में, हर इलाके में लोगों को बाढ़ से डील करने का एक बहुत ही लंबा तजुर्बा है। और उस तजुर्बे का ये आलम है कि अगर आप बहुत सारे इलाकों में देखें तो लोगों के पास जो नॉलेज है, कम्युनिटी नॉलेज जिसको हम कह सकते हैं, वो बहुत ही अधिक लोगों के पास नॉलेज है कि किस इलाके में बाढ़ आती है, कैसे आती है, किस तरह के प्रिकॉशनरी स्टेप लिए जाने चाहिए। क्योंकि लोगों के बीच बहुत ज्यादा जागरूकता है तो उसको लेकर के यहाँ के प्रशासन में भी इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। और असम में फ्लड सीजन 15 मई से शुरू करके 15 अक्टूबर तक माना जाता है, और इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, डे टू डे मॉनिटरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर लेवल अप टू द डिप्टी कमिश्नर लेवल, सर्किल ऑफिसर लेवल, ये डे टू डे मॉनिटरिंग हमारे यहाँ होती है। तो अब इसके लिए पहला फेज जो आपने कहा कि प्रिपेयर्डनेस फेज की जितनी भी तैयारियां थी वो हम लोगों ने अब तक पूरी कर ली है। क्या क्या हमने किया है इसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जी। जैसे कि स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनडीआरएफ की, हमारे एनडीआरएफ के साथी ने बताया कि एनडीआरएफ कहाँ, तो हमने असम में 8 जगहों पे एनडीआरएफ के साथ बातचीत करके उनको प्री पोजिशन करने के लिए जो है निवेदन किया और उन्होंने प्री पोजिशन कर लिया। उसी तरह से 40 जगहों पे एसडीआरएफ को हमने प्री पोजिशन करने के लिए कहा, उन्होंने प्री पोजिशन कर लिया। इसके लिए फिर हम अपने जो जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एम्पावर करते हैं फ्लड सीजन के लिए। उनके पास एडवांस में हम सरकारी धन पूंजी उनके पास रख देते हैं, जिससे कि जो इमीडिएट रिस्पांस है रिलीफ या रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके लिए पैसे की कमी ना रहे। तो जिला उपायुक्तों के पास हमने पैसे रख दिए हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज पिछले साल भी था और इस साल भी है कि दो डिजास्टर्स को हम लोग साथ साथ कैसे हैंडल करेंगे, कोविड एज वेल एज फ्लड। क्योंकि फ्लड क्या होता है कि जब भी लोग रिलीफ कैंप में आते हैं तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में और बहुत ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, और वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट थी कि प्रति व्यक्ति के लिए 35 स्क्वायर मीटर स्पेस जो है, 3.5 स्क्वायर मीटर स्पेस जो है वो देना चाहिए। अब हमने देखा कि अगर कोविड कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम अपनी उस नॉर्म्स के साथ चलते हैं। तो फिर हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके, हेल्थ डिपार्टमेंट, यूनिसेफ, सोशल वेलफेयर सबके साथ बात करके ये कहा गया कि नहीं, इसको 3.5 से 7 कर दिया गया, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। वहां पे चूंकि चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन फ्रेंडली स्पेस अलग से रखा जाए, लोगों की पहले से टेस्टिंग की जाए रिलीफ कैंप में किसी को अकोमोडेट करने के पहले। तो ये करने के लिए हम लोगों ने पिछले साल एक इवॉल्व किया कि कोविड कंप्लायंट रिलीफ मैनेजमेंट, कोविड कंप्लायंट फ्लड मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हमने इस बार फिर से रिव्यू करके और अपने सारे जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उन सबको हमने उसके लिए तैयार कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कम्युनिटी की प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप जैसा हमने पहले बताया कि क्योंकि कम्युनिटी में फ्लड बहुत ही जन जन तक व्याप्त है, तो उसके लिए कम्युनिटी का रिस्पांस भी बहुत अच्छा होता है। हमारे पास पूरे राज्य में करीब 20,000 आपदा मित्र और प्रतिरोधी बंधुओं के नाम से जो जाने जाते हैं कम्युनिटी के वॉलंटियर्स, जो कि फ्लड में प्रशासन को और सरकार को मदद करने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए होते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के लिए कि कहीं पर जैसे रिलीफ कैंप हमने आइडेंटिफाई किए हैं,
कई जगहों पे लोग वहां रिलीफ कैंप में न जा करके उन्होंने अपनी लिए टेम्पोररी शेल्टर्स का इंतजाम कर लेते हैं। तो उसको भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इस बार इशू कर दिए हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन हमने अपनी तरफ से लिया। इस बार हमने 2 चीजें, जो हमारे यहाँ का रिलीफ मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उसमें पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति की जो डेली रोज की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए खाना, कपड़ा, छत, इस तरह की चीजों के लिए जो है व्यवस्था थी। उसमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो इंटरवेंशंस करके, चूंकि यूनिसेफ ने कई सारे इश्यूज रेज किए, एक जन आंदोलन यहाँ पे खड़ा हुआ कि क्योंकि महिलाओं को जब रिलीफ कैंप में रहना होता है तो उनके लिए जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स अगर रिलीफ का पार्ट नहीं है तो इट बिकम्स अ बिग इशू फॉर द वुमेन इन द रिलीफ कैंप। उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए असम सरकार ने इस बार जो हमारा फ्लड का जो नॉर्म्स है कि क्या क्या चीजें रिलीफ कैंप में दी जाएंगे, उसमें सैनिटरी नैपकिन एंड बेबी फूड हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इनटू द रिलीफ रिस्पांस आइटम्स। So elaborate measure हमने कर ली हैं और जैसे जैसे समय के साथ हम और चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। हम इतने पे ही जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। All right, rehabilitation and flood preparedness indeed is a Herculean task as put forth by our guests. We'll talk more about it. We are joined in by guests, and today we are talking about the situation and the flood preparation, in fact flood preparedness in the country, what has been done so far and what needs to be further done. Stay with us, we're heading for a short commercial break. You're watching In Focus. आपकी जिंदगी कैसे बदली फुलकारी? मैं मैडम पहले गाँव जाती थी और गाँव में आता तो सबको था, जिनको नहीं भी आता था उनको काम पहले सिखाना फ्री में, ये नहीं मैं उनसे पैसा लूं, वो अपने घर का गुजारा इस काम में कर रही है। 94 में जब दिल्ली हाट बना था तो लोगों को बस सवेरे अभी गेट नहीं खुलता था, पहले पब्लिक खड़ी होती थी लेने वाली। मैं तो लेडीज को कहती हूँ जिनको नहीं भी आता आके मेरे पास सीखो, सीख के आगे आप भी पढ़ो और घर बैठे बेशक आप काम करो, नहीं निकालने देते तो कोई परवाह न मत करो, पैरों पे तुम खड़ी हो दो, बस आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में विभिन्न हिस्सों में अब मानसून आ गया है, कई हिस्सों से बाढ़ की खबरें भी आने लगी हैं। तो बाढ़ की जो चुनौती है उससे किस तरह से निपटा जाए, इन्हीं सब विषयों पर हम बात कर रहे हैं। कृष्णा स्वरूप वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं एनडीएमए के। कृष्णा स्वरूप जी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो अभी बैठक ली थी सभी संबंधित विभागों की, उन्होंने समीक्षा की थी। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग जैसी तकनीकी संस्थाओं को मौसम और बाढ़ की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अत्याधुनिक तकनीक और सैटेलाइट डाटा का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ जो पूर्वानुमान है वो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक एसओपी, उनका निर्देश है कि एक एसओपी उसके लिए बनाई जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हम ये देखते हैं कि चाहे हम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें या हमारे सैटेलाइट्स की बात करें, हमारे पास अच्छे सैटेलाइट हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पास बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, काफ़ी पहले से वो अच्छा पूर्वानुमान भी देते हैं। हमने अभी जितने चक्रवात आए थे उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह से पहले पूर्वानुमान दिया गया और उसके बाद सेंटर की एजेंसीज, स्टेट की एजेंसीज पहले ही गेयर्ड अप हो गई थी, और उसका फर्क ये देखा गया कि जान माल का नुकसान बहुत कम, बिल्कुल नगण्य रहा था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों तक
किस तरह से ये पहुंचे पूर्वानुमान, इसके लिए क्या कुछ और किया जा सकता है? पहली बात तो ये कि करीब करीब 450 ऐसे जिलों का निर्धारण किया गया है जहां बाढ़ आने की संभावना है, और इन सारे 450 जिलों के लिए बाढ़ के लिए एक आवश्यक योजना बनाने का काम एक साल पहले से ही शुरू किया गया था। माननीय गृह मंत्री ने इसके लिए सूचना दी थी, और उनके निर्देश के अनुसार ये बाढ़ पर ये आवश्यक फोकस रखते हुए जिला स्तर पर इस प्रबंधन को कैसे ज़्यादा मजबूत किया जाए, इसके लिए हमने राज्य सरकारों से इस पर काम किया है। जो IMD है और केंद्रीय जल आयोग है, इन लोगों के माध्यम से हम पूर्व सूचना देते रहते हैं, लेकिन एक है कि लॉन्ग टर्म अर्ली वार्निंग होता है और एक शॉर्ट टर्म अर्ली वार्निंग होता है। तो जब बारिश होती है और उस बारिश के आधार पर हम इस बात का अनुमान करते हैं कि कितना पानी बढ़ेगा, जल स्तर कितना बढ़ेगा, उस हिसाब से हम उस जिले को पूर्व सूचना देंगे, ऐसी हमने व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ हर जिले में जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, इस तरह का केंद्र है जो कि 24 घंटे कार्यरत रहे, और उसके माध्यम से उस सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। तीसरा ये कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो हम इंफॉर्मेशन जिला स्तर पर देते हैं, उसको लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए, तो उसकी भी व्यवस्था हमने की है, क्योंकि लोगों को जो सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले उन्हें सतर्क करने की आवश्यकता है। तो ये जो केंद्र से लेकर के गांव तक है ना, ये जानकारी जितनी जल्दी से जल्दी हम पहुंचा सकें शॉर्ट टर्म में, वो उसकी हमने आवश्यक व्यवस्था की है। और तीसरा ये कि जैसा कि असम के SDM के अधिकारी त्रिपाठी जी ने कहा कि हम वॉलंटियर्स की मदद ले रहे हैं, है ना। NDRF और SDRF तो तैनात हैं ही हैं, इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर, कम्युनिटी के लेवल पर हम वॉलंटियर्स की मदद लेंगे और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। तो ये रहेगा कि इन सारी चीज़ों से जान माल की जो क्षति होती है उसमें हम कमी ला सकते हैं, और विगत कुछ वर्षों में इस तरह के प्रयास से जो मृत्यु की संख्या है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। धन्यवाद। All right, Mr. Shahadi, when we talk of relief measures, in the floods, how important is the multi-agency role, multi-agency cooperation in disaster-struck regions? Added to that, earlier in the show, it was pointed out how relief and rescue becomes more difficult in the times of the pandemic. So I would want you to tell us, what challenges does the NDRF face in giving out relief and rescue measures to the people who are affected by the floods? How uphill a task, how Herculean a task is this? You are right that this is a very uphill task. I would like to tell you that for the purpose of providing rescue and relief material especially, Government of India has created a NDRR, this store which is with NDRF, and we provide these stores on demand by the states, and this includes stores like tents, dignity kits, generator sets, and other items which are required during such calamities. Apart from this, the states also provide assistance, and we coordinate with them in the distribution. This definitely is a very challenging task because it depends. If it is a very short duration, it is okay, but the longer it becomes, the more problematic it is. So at times, it also culminates in a law and order problem.
one of the major issues that we face in case of prolonged inundation is drinking water problems. And in India, in some parts, still people have that hoarding mentality, trying to get as much as possible. So these are the problems that we face. And definitely, the better the coordination, the better is the result on ground. ठीक है, एकलव्य प्रसाद जी, किसी भी स्टेट में खासकर मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में जहां ये बाढ़ की समस्या आती है, वहां पर ये देखा जाता है कि जो रिवर बेड है उसमें काफी इंक्रोचमेंट होता है। ये सबको कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? इसका ये जो आपने कहा, इसका एक परिप्रेक्ष्य है, वो परिप्रेक्ष्य ज्यादातर देखा जाता है शहरी इलाकों में। क्योंकि शहरी इलाकों में ऐसा होता है कि इंक्रोच तो करते हैं, वो रिवर बेड के बीच में आके भी अपना घर बना लेते हैं या वहां रहने लगते हैं, जिसके कारण जो एक फ्री फ्लोइंग रिवर होती है वो बाधित होती है, और वो जिसके कारण फिर आपका पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा अगर कम हो जाए तो फिर अपस्ट्रीम में उसका वो स्वेल करती है और नदी आसपास बिखर जाती है। जो ज्यादातर अगर हम देखें 2019 की बात करें, पटना में जिस तरीके से बाढ़ आई थी शहर में, सब लोग जानते हैं। उसके बाद अलग अलग शहरों में अगर बाढ़ों की बात करें तो ये फिनोमेना ज्यादातर हम लोग शहरों में देखते हैं कि इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके कारण फ्लड इंड्यूस होता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम फ्लड प्लेन्स इन जनरल की बात करें, जहां पर नदियां हैं, बह रही हैं, और खासकर वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां इंक्रोचमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंक्रोचमेंट वैसा मुद्दा नहीं है। वहां पर जिस तरीके से हम नदी के साथ बर्ताव करते हैं, या नदी का जो प्रबंधन, हम उसे अगर बाढ़ प्रबंधन की बात करें उस पर हम लोग अगर थोड़ा ध्यान दें, उसके कारण ये बाढ़ की जो एक स्थिति बनती है वो अलग है। तो हमें ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि ये दोनों परिप्रेक्ष्य को अलग अलग देखें, और उससे देखने के बाद फिर हमें पता चलेगा कि क्या क्या कारण है। दूसरी चीज ये भी है कि शहरों में हम लोगों ने नदी को नदी नहीं माना या नहीं मान रहे हैं। वो या तो एक ड्रेन सा हो गया है, या एक हमारा ट्रिब्यूटरी जो है उस नदी का, उसको हम बिल्कुल नाले की तरह देख रहे हैं। तो जो एक कनेक्ट होना चाहिए विद द एंटायर रिवर सिस्टम, वो भी लुप्त होता जा रहा है, जिसका कारण लोगों का बर्ताव है, जो सिस्टम्स अभी हमारे जो सिस्टम्स हम फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं, तो उसके कारण ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। हमें ड्रेनेज के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, जहां तक हम शहर की अगर बात करें, कि पानी हमारा आता किधर से और जाता किधर से, क्योंकि किसी जमाने में वो बहुत क्लियरली डिफाइंड हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। और उसका कारण भी है कि उन इलाकों में हम लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है, वो उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कहीं कुछ हमारे बस स्टैंड्स आ गए हैं, कहीं पार्क्स आ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो नदी अपना रास्ता जो पहले लेती थी, उसमें हम लोगों ने बहुत अलग अलग किस्म का बाधा खड़ा कर दिया है, जिसके कारण आज के तारीख में हम देखें तो शहरी बाढ़ जो है उसका प्रकोप अब कुछ सालों से दिखता आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा हो रहा है। रेनफॉल अगर हम देखें तो शहरों में इंटेंसिटी शायद बढ़ रही है, जिसके कारण हमारा जो फ्लो है वाटर का वो ज्यादा आ जाता है, और उसके कारण फिर हमारे शहरों में फ्लडिंग हो रही है। एसेट्स जो बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है, ये सारी चीजें जो हैं, ये हम लोगों ने इसे रिवर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया, ना कि हमने उसे फ्लड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखा। इलीगल माइनिंग कितनी जिम्मेदार है सर इसके लिए? कई नदियों में हम देखते हैं कि काफी इलीगल माइनिंग होती है। इलीगल माइनिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है, बट ये अगर इसे हम कहें कि ये एस्पेक्ट सब जगह प्रेवलेंट है, वो कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन जिन इलाकों में ये हो रहा है, उसके कारण नदी का जो एक अपना एक कैरेक्टर है, उससे हम छेड़खानी कर रहे हैं, जिसके कारण फिर नदी का एक दूसरा सा स्वरूप निकल के आ रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर वहां माइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर हमारे बाढ़ का प्रकोप है। उत्तर बिहार को अगर हम देखें अगर ध्यान से, तो वहां पर नॉर्थ बिहार में आपके इलीगल माइनिंग टू एन एक्सटेंट नहीं है, लेकिन वहां पर जो बाढ़ है, हमारे 22 जिले हैं, 22 जिले पर
ठीक है सर, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है तो हम अगले मेहमान के पास चलेंगे। जी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द ऑडियो। ऑलराइट, yes, you are watching In Focus at present. We are discussing flood preparations in the country and how to deal with the challenge of floods across the country. We are joined in by guest. We'll be back after a short break. Stay with us. पसीने का यथाश्रम सुचारू रूप से निकलना, ये ही संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्षण है। वास्तव में योगी भी वही चाहता है जो भोगी चाहता है। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हम स्वस्थ रहें और आनंद रहें। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आपकी जिंदगी कैसे बदली फुलकारी? मैं मैडम पहले गांव जाती थी और गांव में आता तो सबको था, जिनको नहीं भी आता था उनको काम पहले सिखाना फ्री में, ये नहीं मैं उनसे पैसा लूं, वो अपने घर का गुजारा इस काम में कर रही है। 94 में जब दिल्ली हाट बना था तो लोगों को बस सवेरे अभी गेट नहीं खुलता था, पहले पब्लिक खड़ी होती थी लेने वाले। मैं तो उन लेडीज को कहती हूँ जिनको नहीं भी आता आके मेरे पास सीखो, सीख के आगे आप भी बढ़ो और घर बैठे बेशक आप काम करो, नहीं निकालने देते तो कोई परवाह न मत करो, पैरों पे तुम खड़ी हो दो, बस आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बाढ़ पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ ज्ञानेंद्र त्रिपाठी सीईओ हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी असम के, जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, ये होम मिनिस्टर ने जो अमित शाह ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें भी उन्होंने कहा है कि बड़े बांधों से मिट्टी निकालने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए और बांधों की क्षमता बढ़ाने और बाढ़ नियंत्रण में इससे मदद मिल सकेगी। हालांकि हम असम की बात करें तो वहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, लेकिन आपको फ्लड का काफी अच्छा एक एक्सपर्टाइज है, तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? कितना जरूरी है ये जो बड़े बांध हैं उनसे मिट्टी निकाली जाए और इससे बांधों की भी कैपेसिटी बढ़ेगी और बाढ़ का खतरा भी कम होगा? धन्यवाद ये मुद्दा उठाने के लिए। इनफैक्ट जब बड़े बांधों की बात होती है तो असम की स्थिति ऐसी है कि हम चारों तरफ से बड़े बांधों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, भूटान में एक बड़ा बांध है, या इधर अरुणाचल प्रदेश में बड़े बांध है, या फिर नागालैंड में बड़े बांध है। तो इनके कारण निश्चित रूप से जब उनमें जल ज्यादा हो जाता है तो वो जल को छोड़ते हैं और डाउन स्ट्रीम में असम होने के कारण असम के बहुत सारे भूभाग इससे प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ये एक इंजीनियरिंग का विषय है और इसके ऊपर इंजीनियरिंग विशेषज्ञ वो लोग अपनी राय देते हैं और उस हिसाब से काम होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात आपको बतानी चाहता हूँ, वो ये है कि इन डैम्स के बीच में कैसे एक कोऑर्डिनेटेड ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके कि ठीक है इन बांध के बीच में एक आपसी तालमेल बना रहे और उस आपसी तालमेल के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप की कि कहां से पानी किस इलाके में किस तरह से छोड़ने पर हम सबसे ज्यादा ऑप्टिमल रिस्पांस जो है प्राप्त कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमने फ्लड एंड इनंडेशन मॉडलिंग के लिए जो है ये प्रोग्राम असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से विद द हेल्प ऑफ मिसैक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एप्लीकेशन सेंटर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो उनके साथ हमने करके फ्लड एंड इनंडेशन मॉडलिंग का प्रोग्राम शुरू किया कि जो हमारे 3 डैम्स हैं, एक भूटान में है दैट इज खोरीसू डैम, और एक रंगामती डैम है अरुणाचल प्रदेश में, और एक दोयांग रिवर पे डैम है नागालैंड में। इन तीनों डैम्स की अगर हम फ्लड एंड इनंडेशन मॉडलिंग करके और उसके ऊपर हम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम रन करें तो इससे हमें काफी एक अच्छी स्थिति प्राप्त होने की संभावना है, जिससे कि हमारा रिस्पांस और सटीक हो जाएगा, हमारी फ्लड वार्निंग और ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाएगी, हमारा जो फ्लड वार्निंग का डिसमिनेशन है वो और ज्यादा सटीक हो जाएगा, लोगों के बीच में उसकी आस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक नया इनिशिएटिव असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से किया। ठीक है जी, मिस्टर एकलव्य, how important is for the people to acknowledge sensitivity towards the rivers? We're talking of community effort also. As a community, what can be done in our day-to-day lives, also at a bigger level also, what can be done that would somewhere contribute in solving or improving the situation? To begin with, as Tripathi ji had also mentioned earlier, that the communities that are staying along the river, they are the main population that tend to interact with the river the most, and therefore they have an intense knowledge about the river, the behavior of the river, and also in terms of the moods of the river. Now, their expressions of the problem might be very different than what the dominant perception is. However, it is important to understand as to what the river is as per the local communities. And the communities that are staying along the rivers are in different locations. They could be in the upstream, they could be in the midstream, they could be in the downstream. And a river tends to change the character in terms of the location from where the river is flowing. So it becomes all the more important for us to get into the nuances to understand as to how the river behaves, and then to dovetail those understandings into the larger perspective, or for that matter, the district disaster management plan or the district flood management plan. Because there are innumerable narratives that we tend to overlook when we are looking at floods. Again, I would reiterate that we tend to overlook these facts when we're talking in terms of a flood as a uniform identity. So it is important for the communities to participate, and the communities, if you look at it, their response is the first response. Because if they are caught unaware, they are the ones who they tend to go to places which are safer, and definitely the help comes in later. At times it also doesn't reach because of the fact that they are in far-flung areas and remote areas. So their understanding of disaster response also needs to be understood. You need to also understand as to how do they prepare. I mean, initially I had talked about the preparedness. It was preparedness not only from the state's perspective, also about preparedness from the community's perspective. So from January onwards, many places, you would see that people have started stocking the firewood that would actually help them during the monsoon, or for that matter, cow dung cakes, done in a very different manner than the way it is used during in normal circumstances. So the preparation of communities also needs to be understood and dovetailed into the larger perspective. And each region will have its a different take in terms of a different form of a response. Now that is what needs to be understood when we talk about typologies, because it is all in proportion to the kind of floods the river brings in that particular district, sub-district, region, panchayat. So
on one hand, I can understand that it's a humongous task. It's a difficult task to talk about flood rescue, management, rehabilitation, preparedness, etc. But then, in order to have a positive impact in the coming in the future, we need to include all these facts. And if you look at the informal processes that are there in the community, there are plenty. Just to give you an example, when a community gets affected by floods, the initial response, apart from the communities that have got affected, the initial response comes from communities which are in close vicinity and they have not got affected by the floods. So in terms of dry food, in terms of food, in terms of providing them with polythene sheets, even to an extent providing them with drinking water. All of this is managed by the communities which are in the vicinity. Now, these are things that need to be understood in a more nuanced manner. And at that point of time, when we look at floods, our way of looking at floods and the way people tend to look at floods are different. So I would say that though there is a lot of positive interventions by government. In fact, I would like to mention here that recently I got to know that the Disaster Management Department, Government of Bihar, and Development Management Institute, Patna, they have come together, collaborated, and they have set up something called the Center for Excellence in Disaster Management. Now, this is an extremely positive step where an institution is being involved in looking at disasters and trying to build in, the future strategies. Likewise, if these kind of opportunities are also created in order to get the inputs from the grassroots, and it's not a rhetoric that I'm talking about, in genuine sense, then I think so we would be far more richer in understanding rivers than what we are today. At the moment, a lot of reference is with regard to the structural interventions. But then when we talk about rivers, when we talk about flood management, there is a lot more than just there are a lot more than just structural measures that needs to be undertaken, monitored, and also in terms of plan. So this is what I think in terms of how community can be actually linked with the larger perspective of flood management, rescue, rehabilitation. ठीक है, कृष्णा स्वरूप जी, आपको याद होगा कि हैदराबाद में जब कुछ महीना पहले हैदराबाद में हमने देखा था शहर में रातों रात पानी भर गया था, तब भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी। हम शहरों की बात करें या उसके अलावा नदियों के किनारे जहां बसावटें हैं वहां की बात करें, तो इस सब में चाहे हम हैदराबाद का एक उदाहरण ले रहे हैं, कई अन्य शहर भी उसमें हो सकते हैं, तो जो सिविक बॉडीज है या लोकल प्रशासन है उसका क्या कुछ दायित्व इसमें हो जाता है? जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनका ही सबसे ज्यादा दायित्व होता है, और इस बारे में मैं थोड़ा कहूँगा। अभी एकलव्य प्रसाद जी ने भी ढेर सारी बातें कही। एक तो ये कि जो नदियां हैं दे आर लिविंग एंटिटीज, वो उनमें एक जीवंतता होती है, और बहुत ही आवश्यक है कि नदियों की अच्छी तरह से उनकी देखभाल हो, और खास करके जब नदियां शहर के बीच से बहती हों। एक जो नया अप्रोच है वो रूम फॉर द रिवर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि नदियों के लिए आवश्यक जगह होनी चाहिए ताकि पानी का फैलाव हो सके। और जब पानी का फैलाव होता है तो दो चीजें उससे होती हैं। एक तो नदियों का जो बेड है, सतह है, वो ठीक ठाक बना रहता है ना। नहीं तो अगर पानी नहीं फैल पाए तो क्या होता है कि जो अपस्ट्रीम से जो मिट्टी आती है वो जमती चली जाती है और बेड ऊंचा होता जाता है, तो नदियों की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर नदियों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर नदियों का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बना रहना चाहिए, और उसके लिए वो रूम फॉर द रिवर बहुत ही आवश्यक अप्रोच है।
तो एक तो बेड का बना रहना, नदियों का जो सतह है वो बना रहे, और दूसरा जो बैंक्स है नदियों का, जो दोनों छोर है, वो दोनों छोर भी उसी तरह से उसका भी मेंटेनेंस हो। जब इरोजन होता है और जब छोर पर अतिक्रमण होता है, तो इन सारी चीजों से नदियों का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होते चला जाता है। और तीसरी चीज होती है कि जो नदियों के जो पानी है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, कि फ्लुएंट का डिस्चार्ज ना हो और नदियों का पानी की गुणवत्ता बनी रहे। ये तीनों चीजें जो हैं सो नदियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और शहरों में ये नदियों का स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जैसा कि प्रसाद जी ने कहा कि नदियां नहीं रह गई हैं, नदियां नाले हो गए हैं। तो अब जो है एक जो इस बात के लिए जो एक रिकॉग्निशन है कि नदियों को अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था की जाए। चेन्नई में सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है। जो भी वहां पर नदियां हैं, जो भी नाले हैं, जो भी वेटलैंड्स हैं, उन सब का विकास हो और उन सब की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो सब बढ़ाई जाए। तो इन सब चीजों को करने के लिए सबसे जो आवश्यक है वह है कि लोकल गवर्नमेंट जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं ना, और अगर शहर के थोड़ा सा बाहर हो तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब तक ये लोकल गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज ये सब साथ नहीं आएंगे और नदियों के रख रखाव की व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तब तक ये शहरों में जो बाढ़ की समस्या विकट बनती जा रही है यह बना रहेगा। तो हाल के वर्षों में हमने देखा है कि शहरों में बाढ़ की व्यवस्था के लिए नए प्रबंध किए जा रहे हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा है कि वेटलैंड का कैसे विकास किया जाए, नदियों के प्रवाह को कैसे ज्यादा विस्तार दिया जाए। तो इस दिशा में और भी काम होने की आवश्यकता है। All right, so the role of local bodies is equally important, and with this we've come to the end of this show. We're running short of time. We thank all of you for joining us this afternoon and discussing and sharing in your insights on flood preparedness and flood management in the country. So the gist is that the health of the rivers have to be taken care of, have to be maintained. At the same time, the community also plays a very important role, apart from the multi-pronged role of the agencies that is required in the times when floods strike. और साथ ही साथ अभी की अगर हम स्थिति को देखें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और उसके अलावा जो भी पूर्वानुमान का सिस्टम है वो काफ़ी एक्यूरेट है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं, और उसके बाद उस पर एक्शन भी जब किया गया तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो लोगों से भी हमारी अपील है कि मौसम विभाग की ओर से अगर कोई आपको चेतावनी दी जाती है, कोई वार्निंग दी जाती है, तो आप उसको देखें, उसको समझें और उस हिसाब से अपने कदम उठाएं। तो ये भी एक बहुत इसका ज़रूरी पहलू है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। Thank you.